नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ राकेश राव। राकेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जय। आज भारत के लिए काफी बड़ा दिन है। अगर हम सिर्फ भारत के लिए ना कहें, खेल प्रेमियों के लिए, चाहे वो भारतीय क्रिकेटर हो या अन्य खेल प्रेमी, सबकी नजरें अभी दुबई में जी एशिया कप का फाइनल जी। और अभी जो इस वक्त जो वहां सूरत हाल वो ये है कि भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी जो है वो भारत कर रही है और 6 ओवर खत्म हो गए हैं। पावर प्ले में पाकिस्तान ने 45 रन बनाए बिना किसी विकेट के जी। इसके अलावा भी हमारे पास कई खबरें हैं। ISSF है जो दिल्ली में चल रहा है, एक्वाटिक्स चैंपियनशिप है और भी बहुत कुछ होगा, सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशिया कप T20 क्रिकेट का फाइनल पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। अनुष्का ठोकर ने ISSF जूनियर विश्व कप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तैराक श्रीहरि नटराज ने 11वीं एशियाई एक्वाटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन 200 मीटर फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता और अभय सिंह ने कतर क्लासिक स्क्वाश में पहले दौर में दुनिया के 5वें नंबर के खिलाड़ी करीम गवाट को हराकर बड़ा उलटफेर किया। शुरुआत एशिया कप से, जहां फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक 7वें ओवर में भारत ने बिना किसी नुकसान के 48 रन माफ कीजिएगा, पाकिस्तान ने बिना किसी नुकसान के 48 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक रिपोर्ट। India won the toss and chose to field. India is bowling for the first time in the Asia Cup final and that too against Pakistan in the Dubai International Cricket Stadium. Hardik Pandya is injured and has been replaced by Ringu Singh. From the Pakistan side, Saeem Ayub and Farhan walk out for the batting in the opening for Pakistan. India, captained by Suryakumar Yadav, secured the place in the final following the dramatic super over victory against Sri Lanka in the Super 4 stages on Friday. The campaign has been marked by dominant performances, including a commanding 7-wicket win over Pakistan during the group stage on September 14th. Pakistan, led by Salman Agha, earned the spot with 11-run triumph over Bangladesh on Thursday. India has been favourites in this series and 8 Asia Cup titles from 11 finals underline India's dominance. The batting has been thrived on Abhishek Sharma's explosive starts and Tilak Verma's reliability in the middle order. The spin duo of Kuldeep Yadav and Axar Patel has unsettled opponents throughout the tournament. Yet, controversy has not been away. Captain Suryakumar Yadav has been fined 30% of his match fee for dedicating the win to the Pahalgam attack. Our captain, Suryakumar Yadav, had reportedly refused to pose for a photo alongside Pakistani captain before the Asia Cup final match, as per our sources here. Suryakumar Yadav has also indicated that he will not accept the trophy from Mohsin Naqvi, chairman of the Asian Cricket Council and the head of Pakistani Cricket Board. Tensions has been simmering between India and Pakistan throughout the Asia Cup 2025 edition, and that will make this final the most interesting aspect of Asia Cup ever. And let's hear some fan reactions. Today I'm sure Suryakumar will surprise us and he's going to score big. Definitely we are counting on Abhishek Sharma as well as Shubman Gill. So I'm sure the trio of Abhishek, Shubman and Suryakumar will make a big difference for India's win today. Bharat Mata ki Jai. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai. देखा हमने किस तरह से अभी दुबई में भारतीय प्रशंसक जो है किस तरह से खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा भारत ने आज फाइनल के लिए 3 अहम बदलाव किए हैं। क्या इसका कुछ पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा? देखिए, इसमें जो 2 थे वो तो खैर एक्सपेक्टेड ही था कि अर्शदीप और हर्षित को बाहर ही जाना था, क्योंकि बुमराह और शिवम को आना था टीम में। और हाँ, एक जो चेंज है, जो तीसरा चेंज है, वो है रिंकू का आना और हार्दिक का बाहर जाना। तो ये एक जरूर एक डिफरेंट चेंज है। मतलब ये है कि हमने एक फास्ट बॉलर, जो रेगुलर फास्ट बॉलर है, ऑलराउंडर, उसके बजाय हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्पिन ऑप्शन है। तो इसका मतलब ये होता है। अदरवाइज ये जो टॉस इंडिया ने जीता है, ये तीनों बार ऐसा हुआ है कि इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का ये तीसरा मैच है और तीनों मैच में टॉस कोई भी जीते, हुआ ये है कि इंडिया ने टारगेट चेज किया है। तो स्क्रिप्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने पहले 2 मैचेस में देखा, लेकिन हाँ, फाइनल का एक दबाव अलग होता है खिलाड़ियों के ऊपर, और जो पहले के जो रिजल्ट होते हैं वो चाहे हम उसको जैसे भी देखें,
वो यहाँ पे खासकर आज वाले दिन में उसका असर नहीं होगा। तो प्रेशर में है दोनों टीमें, थोड़ा बहुत कॉन्शियसली खेलते हैं, थोड़ा ज़्यादा सतर्कता बिल्कुल बरतते हुए खेलते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जैसे कि अभी जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान ने थोड़ी कॉशियस शुरुआत की, और ये बहुत ज़रूरी है कि भारत आज के मैच में, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में इंडिया की फील्डिंग कोई अच्छी नहीं रही है, काफ़ी कैचेस ड्रॉप हुए हैं। तो अभी क्योंकि भारत अगर वो अपने कैचेस पकड़ लेता है तो बॉलर्स को भी वो कॉन्फिडेंस मिलता है और रन रेट गिरता है और अपोजिशन के ऊपर प्रेशर बनता है। जी, अभी आपने जिस तरह से कहा कि उनकी फील्डिंग पे काम करना चाहिए। पहले अगर हम पुराने मैचों को देखें तो अभिषेक शर्मा जिस तरीके से आक्रामक रहे, अगर हम बल्लेबाजी विभाग को देखें जी, तो क्या बाकी भारतीय खिलाड़ी उनके साथ उसी तरह का एक कहते हैं ना कि उनका साथ निभा पाएंगे या नहीं, या फिर हम किसी अन्य खिलाड़ी से जैसे सूर्य कुमार यादव हो गए उनसे क्या उम्मीदें कर सकते हैं? देखिए, आपकी बैटिंग काफी लंबी है और अभिषेक से आप हर बार ये उम्मीद रखें कि वही रन बनाएगा, हालांकि अभी तक वो ऑलमोस्ट हर मैच में उसने रन किए हैं। तो वहां से अगर रन आते हैं अभिषेक के तो फिर मतलब हमें कुछ और कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उनके बल्ले से आज रन नहीं भी आए तो भी भारत को कोई बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने इतनी लंबी बैटिंग आपके पास है, आपके पास ऑलराउंडर्स भी हैं और आप करीब नंबर 9 तक आपके पास हैं, मतलब लोग हैं जो कि बैटिंग कर सकते हैं। तो कोई खास नहीं है, और खासकर ये T20 गेम है आफ्टर ऑल, तो आप इसमें बहुत ज्यादा एक इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। हाँ, अभिषेक का फॉर्म जबरदस्त रहा है, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी रही है, ऑपोजिशन के ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव भी है, वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है और फेलियर कभी भी किसी के भी टीम के साथ, किसी इंडिविजुअल के साथ हो सकता है। लेकिन जो भारतीय फैन है वो पूरी टीम के ऊपर अपना विश्वास रखे हुए हैं, ना कि सिर्फ एक खिलाड़ी पे। जी, अभिषेक शर्मा की हम बात कर रहे थे, अभी टूर्नामेंट में उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं 309 रन, और विराट कोहली के एक रिकॉर्ड है जो उन्होंने बनाया था वर्ष 2014 में करीब कि T20 विश्व कप में उन्होंने 319 रन बना करके बहुदेशीय T20 टूर्नामेंट में किसी भी भारतीय द्वारा सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड कायम किया था। अभिषेक अभी इससे महज 11 रन पीछे हैं। क्या उम्मीद है उनसे नया रिकॉर्ड स्थापित कर सकते हैं? देखिए, ये रिकॉर्ड बने या न बने, क्योंकि इससे पहले, इस मैच से पहले मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने इस रिकॉर्ड को याद भी नहीं किया होगा। तो रिकॉर्ड जो ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं, ये हम इस टूर्नामेंट को अभिषेक के लिए याद करेंगे, उनकी बैटिंग के अंदाज के लिए याद करेंगे, उनके स्ट्राइक रेट के लिए भी याद करेंगे। और अगर चलते चलते अगर ये रिकॉर्ड बन गया तो सोने पे सुहागा। लेकिन जो अभिषेक से उम्मीदें थी उससे वो ऊपर ही खेले हैं। हर बार उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दिया है, जिससे कि मिडिल ऑर्डर के ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया उन्होंने, तो ये कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। रिकॉर्ड हो जाए बहुत अच्छी बात है जी। तो भारत का टारगेट होगा कि पाकिस्तान पर जीत दर्ज करके वो हैट्रिक के साथ खिताब पर कब्जा जमा ले। बिल्कुल। उभरते हुए निशानेबाज अनुष्का ठोकर ने आज दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह रेंज में चल रहे ISSF जूनियर विश्व कप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में जीत के बाद यह ठोकर का इस प्रतियोगिता में दूसरा स्वर्ण पदक था। जूनियर पुरुषों में 50 मीटर 3 पोजीशन स्पर्धा में एड्रियन कर्माकर ने रजत पदक जीता। भारत अब 4 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। हमारे जूनियर निशानेबाज को भी देखें तो वो कम नहीं है। देखिए, वो ऑलरेडी एशियन चैंपियन हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड वैसे ही अच्छा है और कॉन्फिडेंस बहुत है। 18 वर्षीय हैं, चेन्नई में ट्रेन करती हैं और ऑलरेडी उनके पास एक्सपीरियंस है। और आज जैसे उन्होंने शूट किया है क्वालिफिकेशन फेज, उन्होंने नंबर 1 थी उसमें भी जी। और फाइनल जो होता है जिसमें कि आपके पास 45 शॉट्स होते हैं, उसमें भी उनका स्कोर जो है 461 रहा है, जो काफी अच्छा स्कोर माना जाता है। तो स्कोर के हिसाब से भी अच्छा है और वो भी 6.1 के मार्जिन से जीते हैं। शूटिंग में नॉर्मली हम फ्रैक्शंस में या 1 या 2 पॉइंट के अंतर से जीतते हैं, 6 पॉइंट का मार्जिन बहुत होता है जी।
अब चलते हैं झारखंड की राजधानी रांची में, जहां 16वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन यानी कि आज कुल 13 पदकों की स्पर्धा हुई। देश भर से आई 700 से अधिक एथलीटों ने रेलवे, स्पोर्ट्स, एसएससीबी, ऑल इंडिया पुलिस और अन्य राज्यों के लिए बेहतर प्रदर्शन किया। बात करते हैं, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट। झारखंड पुरुष टीम ने 4 गुना 100 मीटर रिले पुरुष फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों की 1500 मीटर में सुनील डावर ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं महिलाओं की 1500 मीटर में लिली दास ने जीत दर्ज की। महिलाओं की गोला फेंक में योगिता ने 16.52 मीटर फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। 400 मीटर में नीरू पाठक और राजेश रमेश ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। ऊंची कूद महिला में तमिलनाडु की गोबिका ने जीत हासिल की। 100 मीटर पुरुष में मणिकांता एचएच ने 10.19 सेकंड का नया मिड रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। महिला वर्ग में कर्नाटक की स्नेहा एस विजेता रही। इसके अलावा पुरुषों की 110 मीटर हर्डल्स और महिलाओं की 100 मीटर हर्डल्स में भी शानदार मुकाबले हुए। 4 गुना 400 मीटर मिक्स रिले में उत्तर प्रदेश ने स्वर्ण, पंजाब ने रजत और तमिलनाडु ने कांस्य पदक जीता। विजेता खिलाड़ियों को भारतीय एथलेटिक्स टीम के मुख्य कोच एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पुरस्कृत किया। इस मौके पर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, झारखंड ओलंपिक संघ के अधिकारी भी मौजूद रहे। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन। भारत के अनुभवी तैराक श्रीहरि नटराजन ने अहमदाबाद में 11वीं एशियाई एक्वाटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन आज 200 मीटर फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता। श्रीहरि ने 1 मिनट 48.47 सेकंड का समय निकाला और चीन के 17 वर्षीय शू हेइबो के 1 मिनट 46.83 सेकंड के बाद दूसरे स्थान पर रहे। 2 बार के ओलंपियन नटराज ने सुबह दूसरी हिट में दूसरे स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। भारत के अनीश गौड़ा चौथी हीट में थे, लेकिन चौथे स्थान पर रहकर फाइनल में नहीं पहुंच सके। नटराज ने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। एशियाई एक्वाटिक्स चैंपियनशिप में जिस तरीके से श्रीहरि ने रजत पदक जीता, ये भी काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं हम हमारे लिए। देखिए, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि स्विमिंग एक ऐसा इवेंट है जहां पे कि एक इंडिविजुअल बहुत सारे मेडल जीत सकता है। इसीलिए हम जैसे कहते हैं कि एथलेटिक्स, स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स, ये 3 डिसिप्लिन ऐसे हैं जहां पे कि अगर आपके पास एक भी अच्छा एथलीट है तो आप मेडल्स टैली में काफी ऊपर दिखते हैं जी। तो क्योंकि ये तीनों में इंडिया कोई बहुत अच्छा नहीं करता है, और एशियन कॉन्टिनेंट में स्विमिंग में स्पेशली इंडिया का बहुत दबदबा या ऐसा नाम नहीं है, क्योंकि यहाँ चाइना भी है, जापान है, कोरियाज हैं, चाइनीज ताइपेई है, हांगकांग, ये काफी टीम्स है, सिंगापुर वगैरह। तो उसमें अगर आप सेकंड आते हैं, क्योंकि कि इसका जो स्टैंडर्ड है काफी हाई रहता है जी, तो इसमें अगर सेकंड आया तो ये कमाल है। स्क्वाश खिलाड़ी अभय सिंह ने दोहा में कतर क्लासिक स्क्वाश के पहले दौर में दुनिया के 5वें नंबर के खिलाड़ी मिस्र के करीम गवाट को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। पीएसए टूर पर भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी अभय ने 41 मिनट में 11-6, 11-4, 1-11, 11-9 से जीत दर्ज की। अभय का सामना अब दुनिया के 15वें नंबर के खिलाड़ी मिस्र के फारिस डेसुकी से होगा। मिस्र के इतने बेहतरीन खिलाड़ी हैं और दुनिया के 5वें नंबर के खिलाड़ी, उनको अभय सिंह ने मात दी। देखिए, अगर आप वर्ल्ड के 35th रैंक्ड हैं और आप अगर 5 को हरा देते हैं तो ये अपने आप में ही एक बात तय हो जाती है, सिद्ध हो जाती है कि आज आपका दिन था जी। और जिस स्कोर लाइन से आप जीते हैं, मतलब हालांकि आप तीसरा जो सेट था वो सिर्फ 1-11, मतलब सिर्फ आपने 1 पॉइंट बनाया, उसके बावजूद आपने अगला वाला 11-9 पे जीता, तो आप में वो डिटर्मिनेशन है। और अभय का फॉर्म जो हमने देखा, 27 वर्षीय हैं, काफी साल से खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस है, लेकिन आज डेफिनेटली उनका दिन था जी। भारतीय फुटबॉल टीम ने कल कोलंबो में पेनल्टी शूटआउट में बांग्लादेश को 4-1 से हराकर 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारतीय टीम में अगर हम देखें कि शूटआउट का जब नतीजा निकला तो भारतीय टीम ने जिस तरह से संयम बनाए रखा और बांग्लादेश की टीम को हमने बिखरते देखा। देखिए, सैफ रीजन में भी अगर आप देखें, ये एक ऐसा खेल है जहां पे भारत और बांग्लादेश में बहुत फर्क नहीं है। नहीं तो रीजनल जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, भारत हर गेम में आगे है, लेकिन फुटबॉल एक ऐसा है जहां पे कि भारत को भी तकलीफ होती है अपने आप को एसेट करने में। तो ये जो 4-1 से जीते हैं, ये मार्जिन अपने आप में एक अच्छा मार्जिन है, एनकरेजिंग है जी। श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। राकेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और खेल खबरों पर बात की, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, इसी के साथ पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।